Okay. What about everyone else? Rahul verified. Shivam, okay, verified. Rashmi, what about you? Is your property verified? Aniket, Shubham, Vaibhav. Acha, Vaibhav was not in the previous session. Shweta, Yes, please ma'am. ping me Verified. in the chat box. Verified? Okay. Take it. So, uh, in the previous session, we have discussed how to design the WordPress website on the free version. So, is your website ready? Is there any confusion? Anything you want to ask related to designing the WordPress website on the free version? Any confusion? मैम हेलो। Have you all created your website? Yes, Shivam. हाँ जी. थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन मैम नहीं आ रहा है इसमें। फ्री में जो मैं किया हूँ ना, देखिए मैं भेजा हुआ हूँ हाँ वेबसाइट, हाँ उसमें मैम थीम फाइल हाँ एडिटर हाँ. का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो कि मैं गूगल सर्च को एनालिटिक एक्सेस दोनों का वेरीफाई करवा पाऊँ वर्डप्रेस, उसमें वो चीज नहीं आ रहा है इसमें। थीम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, थीम डाउनलोड करने इंस्टॉल करने का, ये बोल रहे हो आप? यस मैम, वो थीम का था, थीम और ये जो एडिटर वो दो ऑप्शन आ रहा है ये अपेंडेंस में। और ये थीम फाइल एडिटर जो ऑप्शन आता है ना, हम्म, जिसमें हेडर फाइल के अंदर जाकर गूगल सर्च को और हाँ हाँ एनालिटिक का हाँ. कोड डालना होता है, वो नहीं आ रहा है। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा इसमें. ओके मैम, उसके अलावा सब नहीं कुछ नहीं, वो ओके है। फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है. वो उसके अलावा वो सब कुछ हो गया. ओके. सो राहुल, it is not ready. Do you have any confusion, any doubt, or related to designing part? Why it is not ready? Please unmute yourself, or acha, there is no confusion, but you didn't get time. Is it like that? What about everyone else? Rashmi, please ping me in the chat box or unmute yourself. Vaibhav has sent. Okay, I have received your link, Vaibhav. I'll check this. What about others? Shubham Verma. Mm, okay, good, Vaibhav. You have created it today only. I'll check this. Okay, Vaibhav. Uh, Rashmi, have you created your website? Are you there? Shweta, Shubham, am I audible to you? Please unmute yourself or at least ping me in the chat box. मैं किससे बात कर रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, किसको पढ़ा रही हूँ मैं? Rashmi, you are not there in the last session. Okay. So, ठीक है. What about others? ठीक है. Shweta. Acha, Shweta, your messages are not visible to me. You can ping me on the WhatsApp. I don't know why your messages are not visible in the chat box, but you can ping me in the on the WhatsApp. Okay. Is your website completed? सी, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है डिजाइनिंग पार्ट से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. अदरवाइज मैं वर्डप्रेस का थियरी स्टार्ट करती हूँ मेरी तरफ से, फिर वो उसका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा यदि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, कुछ पूछना नहीं है तो. ओके. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द थियरी पार्ट. What's this?
अच्छा, वो डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा ही बाकी है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंप्लीट नहीं हुआ है दैट इज, बट यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ये श्वेता, I got your message now. Okay, you can complete it by the next session. ठीक है? So let's start with the theory part of WordPress. Okay, I'm sharing PPT with you. So is the PPT visible to you? PPT visible है आप लोगों को? No? Uh, ये इसमें विजिबल है। is it visible? Okay, okay, ठीक है। So what is WordPress? WordPress is actually um, it is an open source content management system. Okay, um, open source means uh, anyone can modify it, and anyone can install it for free. Anyone can modify it. Okay, there is no charge for using WordPress or for modifying it. Okay, that is why it is known as online open source content management system. Okay, it is very popular and very simple tool for creating website. Even if you don't know any coding, even if you are not from coding background, still you can create your own website using the WordPress. Okay, on the WordPress you will get predefined templates, and using those templates you can customize those templates according to your requirements, according to your business requirements. Okay, and you can create your own website. ठीक है? जब WordPress start हुआ था, initially it was for ओनली इट वाज फॉर ब्लॉगिंग पर्पस। ठीक है, ब्लॉगिंग पर्पस के लिए ही स्टार्टिंग में वर्डप्रेस था, लेकिन लेटर ऑन व्हाट हैपन, इट डेवलप्ड, एंड नाउ वी कैन create any type of website using WordPress. We can create portfolio, we can create e-commerce websites. Okay, we can create any हॉबी या फिर लाइफस्टाइल वेबसाइट, ओके, हेल्थ केयर वेबसाइट, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट वी कैन क्रिएट यूजिंग, इवन वी कैन क्रिएट एप्स यूजिंग वर्डप्रेस. ओके, so anything we can create using WordPress now, right? So main advantage of website is that we don't need any coding and designing skills to create a website. Anyone can learn it. Okay, even if they are not from the coding background. ठीक है, आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यूज करके वर्डप्रेस को सीख सकते हो और बना सकते हो. ठीक है, श्वेता, आई विल आंसर यू. वन सेकेंड. अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट दी दिस. श्वेता, जो आप पूछ रहे हो, दिस इज साइड बार. ओके, साइड बार क्या होता है मैं एक बार दिखाती हूँ. साइड बार का ऑप्शन आपको मिलेगा. वन सेकेंड, हम लोग पहले थोड़ा सा थियोरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. आप लोग मुझे पिंग करके रख दीजिए अपना क्वेरी, फिर हम लास्ट में इसको कवर करते हैं. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. साइड बार, इसको साइड बार बोलते हैं. साइड बार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नेविगेशन में. ठीक है, सो यस, so WordPress is this, you can use it for free now. उसका जो कॉस्ट है या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज आल्सो वेरी लो related to other content management systems like Joomla and Drupal. Okay, if we use Joomla or Drupal, they are a little bit more costly than WordPress. Okay, तो आपको यदि
वर्डप्रेस वेबसाइट का मेंटेनेंस भी करना है या उसको क्रिएट करना है, आप थीम्स वगैरह भी परचेस करते हो, तो भी वर्डप्रेस इज मोर नो कॉस्ट इसका कम है रादर देन द Joomla और Drupal. ठीक है, अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस, .com एंड .org. कैन एनीवन टेल मी क्या डिफरेंस है बिटवीन .com एंड .org? मैम कोई बता, .com है, .com कमर्शियल के लिए यूज होता है और ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है. ओके, गुड. So we have two types of WordPress, WordPress.org and WordPress.com. Okay, what is the difference between these two? It is based on basically the hosting of your website. ठीक है, means if you are using WordPress.org platform, ठीक है, there you have to purchase your own domain and hosting and then you can install WordPress website on that. ठीक है, मतलब कि यदि आप WordPress.org प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां पर आपको अपना खुद का डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग भी खरीदना पड़ेगा और फिर आप उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यदि मैं wordpress.com की बात करूं तो wordpress.com में डोमेन आप फ्री भी यूज कर सकते हो, वहां पर फ्री डोमेन्स भी अवेलेबल है. ठीक है, या फिर आप उसको परचेज भी कर सकते हो ताकि आप उसको wordpress.com की जगह पर अपना एक्सटेंशन वहां पर यूज कर सको. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज आप wordpress.com की वेबसाइट पर ही उसको होस्ट भी कर सकते हो यदि आपको नहीं परचेस करना है, जैसे कि हमने ये फ्री वर्जन में किया है. ठीक है, फ्री वर्जन में जब हमने परचेस किया था तो हमने देखा था कि हमने जो भी फ्री डोमेन वहां पर अवेलेबल था वो हमने सिलेक्ट कर लिया. डोमेन परचेस करने की जरूरत नहीं है, हमने wordpress.com के सब डोमेन की तरह उस डोमेन को यूज किया और उसको wordpress.com पर ही होस्ट कर दिया. ठीक है, लेकिन इसमें we have limited features. ठीक है, so limited features like we cannot install other themes, मतलब कि paid themes या फिर paid themes नहीं बोल सकते, प्रो वर्जन में जो थीम्स आती हैं वो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते या फिर किसी बाहर की थीम को वी कैन नॉट इंस्टॉल. ठीक है, मतलब कि हम किसी दूसरी वेबसाइट से थीम इंस्टॉल करके इस पर अपलोड कर दे तो दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन दी फ्री वर्जन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज we cannot upload any plugin on our website. ठीक है, so अब तीन चीजें हैं हमारे पास, three terms we have. First is domain, second is hosting and third is plugin, right? So can anyone tell me what is domain, what is सबसे पहले domain डिस्कस करते हैं. So what is domain? domain या domain what does it, name of the website. Okay, yes, yes, correct. Yes, Rahul and Vaibhav, both are correct. डोमेन जो होता है वो वेबसाइट का नाम होता है, राइट? वेबसाइट का नाम जैसे कि stuvalley.com है. ठीक है, तो stuvalley इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट. ठीक है, यस रश्मि, करेक्ट. सो अब आता है होस्टिंग. सो व्हाट इज होस्टिंग? डोमेन हो गया, नेम ऑफ द वेबसाइट. ठीक है, अब होस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज होस्टिंग? हु विल टेल मी? सर्विस प्रोवाइडर, यस, और सिंपल टर्म्स में वेब स्पेस. करेक्ट, दिस इज द करेक्ट टर्म, वेब स्पेस. होस्टिंग क्या होती है? इंटरनेट पर जो हमको स्पेस मिलती है, राइट? व्हेन वी वांट टू make our website live on internet, we need space on internet, okay, to place our website there, right?
So that space is known as hosting. Okay, मतलब कि हमें अपनी वेबसाइट को जब लाइव करना है तो लाइव करने के लिए हमें एक जगह चाहिए अपने इंटरनेट पर, ठीक है। तो इंटरनेट पर जो जगह हम परचेस करते हैं दैट जगह इज नोन एज होस्टिंग, ठीक है। So there are many hosting providers and various websites from where we can purchase domain and hosting both, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे अभी कौन कौन से hosting providers and which we can use। इसके बाद थर्ड टर्म जो है हमारे पास that is plugin। So what is plugin? plugin क्या होते हैं? Who will tell me what is plugin? Anyone? No? You are already using WordPress websites. So I think most of you are using WordPress website already. Extensions, no. Small supporting scripts. Okay, can you simplify this, Vaibhav? Modification tools. Yes, Rahul, that is correct. Vaibhav, you are also right, but can you simplify this? What is small supporting scripts? See, API. API is different thing. See, plugin is basically a tool for adding additional features to our website. Okay. For example, if my website does not have like WhatsApp feature is not there in my website. Okay. या फिर social media plugins are not social media feature is not social media sharing feature is not available on my website, okay, for example, and I want that on my website. So what will I do? I will add a plugin for social sharing to my website. Okay, this additional features which I am adding to my website using a tool, this tool is known as plugin. Okay, I'm showing it to you how will we do that. Just 1 second. Plugins and themes you can only install if you have purchased domain and hosting already. Okay, otherwise you cannot sorry, otherwise you will not be able to upload plugins on your website. Okay, is my screen visible to you? Is it visible? Okay, so this is the WordPress dashboard, and ये ऑप्शन है फॉर plugins, ठीक है। So we just have to click on this, and if we want to add a new plugin we will click on add new plugin, ठीक है। Let's say we have to install plugin of social sharing, ठीक है। सोशल शेयरिंग का फीचर मेरी वेबसाइट पर नहीं है और मुझे वो फीचर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे सोशल शेयरिंग, ठीक है। सर्च करते हैं। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको चेक करना है which version is compatible with your WordPress version, which plugin is compatible with your WordPress version। तो यहाँ पर ये given है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज भी गिवन है। आपको जो सही लगता है वो प्लगइन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है।
सो दिस इज द प्लगइन फीचर, ये एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है। जो जैसे मेरी वेबसाइट पे स्लाइडर का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे स्लाइडर ऑप्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर स्लाइडर सर्च करूंगी। अब स्लाइडर से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स होंगे, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देखो, these are the plugins for sliders, so we can install any of them and activate on the website, ठीक है। Is it clear? Now next thing is, okay, so is that clear? All the three terms are clear: domain, hosting and plugins, ठीक है। And the difference between wordpress.com and wordpress.org is also clear, right? Is there any confusion related to these terms? Okay, okay, take it. So again I am sharing the PPT, and yes, so is the PPT visible? Is it visible? The window is visible to you? Okay, okay, ठीक है। Now, what are the features of WordPress? We are already using WordPress. We are designing the WordPress website, so we should know what are the features of WordPress. Okay. So first of all, very first feature is flexibility. So, can anyone tell me how WordPress is flexible? Anyone? You can unmute yourself and you can tell me your answer. No? Okay, no problem. So, in the WordPress platform, you can create any type of websites. Like you can create personal blog, you can create business blog, photo blog, or traveling website. You can create news website. You can create, right? So you can build your website with WordPress themes and plugins. Okay, and you can modify it, or you can customize it in your way, ठीक है, according to your business requirements, right? In WordPress you can choose from 1,000 plus plugins and themes, okay, and that also for free, okay. There are paid and free both versions available. You can use any free website, free theme or free plugins, okay, or you can upgrade them also, okay. There is also option for upgrading it, okay. So it is up to you. If you want to upgrade the things, you can do that, or you can use it for free also. In the free version also you have unlimited features available, okay. So this is the flexibility of WordPress, right? Means n number of plugins you have, n number of themes you have, you can use them and add additional features to your website, right? So this is how WordPress is very flexible for using. Okay, I have got the answers also. WordPress installed in any hosting and डोमेन ऐप, ओके, यस, किसी भी डोमेन और होस्टिंग में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल, ओके। एंड इट्स द सेम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, द इंटरफेस इन बिटवीन द ऐप एंड अवर वेबसाइट, ओके, वी कैन इंटीग्रेट इट to in our website, okay, okay, yes, Vaibhav and Rahul, you are also correct, ठीक है, कि हम वर्डप्रेस को किसी भी होस्टिंग में किसी भी डोमेन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल, ओके। नेक्स्ट इज यूजर फ्रेंडलीनेस, ओके। So a WordPress website you can easily install and set up in less amount of time without any technical knowledge, ठीक है। यदि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मतलब कि आपको यदि कोडिंग का भी नॉलेज नहीं है,
स्टिल आप जो वर्डप्रेस है उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें, ठीक है। Here you can easily create a blog and easy to manage and customize your sites, ठीक है। मतलब कि आपकी वेबसाइट को मैनेज करना और उसको कस्टमाइज करना भी बहुत आसान है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, बट द थिंग इज यदि आप सीखोगे तो उसको सीखना भी आसान है, rather than learning the codings and all, ठीक है, which is rather complicated, right? So जो WordPress यूज करना है, WordPress सीखना और उसे यूज करना या कस्टमाइज करना, दैट इज वेरी सिंपल, ओके। और आप बहुत जल्दी उसको सीख कर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूजर फ्रेंडली, ओके। और कोई भी प्लगइन हम उसमें या फिर एडिशनल फीचर यदि हमें ऐड करना है अपने वेबसाइट में, तो वो भी बहुत इजी है वर्डप्रेस पर, राइट। वर्डप्रेस मेक्स इट इजी टू मैनेज योर कंटेंट, राइट। मतलब कि यदि आपका जो कंटेंट है, आप बहुत सारा यदि कंटेंट अपलोड भी करते हो वेबसाइट पर, तो भी वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनके थ्रू हम वर्डप्रेस पर अपने कंटेंट को इजीली मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो इट इज वेरी इजी टू मैनेज अवर कंटेंट ऑन वर्डप्रेस. On the WordPress we can publish and schedule blogs as per our wish, ठीक है। मीन्स इन एडवांस ऑल्सो वी कैन पब्लिश अवर पोस्ट या फिर वी कैन स्केड्यूल अवर पोस्ट, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ भी फंक्शन है मेरे घर में, राइट। अभी मुझे उस दिन भी ब्लॉग्स पब्लिश करने अपने वेबसाइट पर मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, वहां पर स्केड्यूलिंग का भी ऑप्शन है। मैं अपने पोस्ट पहले से लिख कर उसको स्केड्यूल कर सकती हूँ कि मुझे इस दिन को इसको पब्लिश करना है, ठीक है। So that option is also available in WordPress website, ठीक है। And also you have decided to make your content public or private and secure your posts and pages with a password, ठीक है। आप अपने जो भी पोस्ट या पेजेस आप पब्लिश करते हो अपने वेबसाइट पर, आप उसको सिक्योर भी कर सकते हो, ठीक है। और उसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, दैट इज ऑल्सो अप टू यू, ठीक है। यदि किसके साथ आपको शेयर करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में जो कि उसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज मीडिया मैनेजमेंट. सो media management in the WordPress, we have a media library for this WordPress, okay. So you can choose and upload images and videos easily. I'm sharing a screen for that. Just 1 second. Is it visible? Is the website visible to you? Yes, okay. So we have the option of media here, media library, okay. From here we can upload any image or 1 second. See, this is the option. So यहाँ से हम कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, राइट। एंड कोई वीडियो यदि हमें अपलोड करना है, कोई GIF जो भी हमें अपलोड करना है वो हम इस मीडिया ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं यूज, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। यू कैन चूज एंड अपलोड इमेजेस एंड वीडियोस इजीली. इट हेल्प्स टू एनहांस द रिचनेस ऑफ योर साइट कंटेंट, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ऐड कंटेंट और इमेजेस, just drag the media content from your computer and drop into the uploader to get it uploaded, ठीक है। मतलब कि इसमें ऐड करना भी बहुत इजी है, ठीक है। जैसे
यहाँ पर हमने क्लिक किया, ऐड न्यू फाइल किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यदि आपने कोई डाउनलोड की हुई है इमेजेस तो आप उसको डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ पर या तो अपलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ से कोई भी फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज दैट इजी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज media files includes audio, video, images and documents. Documents also you can upload on the WordPress website, right? To get it uploaded, and you can order and customize your files on WordPress. If you want to organize your media library, just install the Media Manager plugin to organize your files easily and fast. ठीक है, यदि आपको आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट या बहुत सारी मीडिया अपने वेबसाइट पर या वर्डप्रेस वेबसाइट पर ऐड की हुई है, अपलोड की हुई है और उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो यू कैन इंस्टॉल मीडिया मैनेजर प्लगइन ऑल्सो। ठीक है, मीडिया मैनेजर प्लगइन अवेलेबल होता है वर्डप्रेस पर, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप इजीली और फास्टली अपने जो फाइल्स है उसको मैनेज कर सको। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट थिंग इज क्विक इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड। ठीक है, यदि वर्डप्रेस की हम बात करें तो वर्डप्रेस इज वेरी सिंपल एंड क्विक प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेडिंग। ठीक है, यदि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, और यदि आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, यदि आपको कोई प्लान अपग्रेड करना है या फिर आप फ्री डोमेन यूज कर रहे हो और उसको अपग्रेड करना है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी one second, let me show you. हमने जो फ्री वर्जन यूज किया था उस पर हम चल के देखते हैं। सो दिस वाज द फ्री वर्जन, ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सो इफ वी वांट टू अपग्रेड दिस डोमेन, we just have to click on this upgrade button. Okay, तो यहाँ से डोमेन अपग्रेड हो जाएगा। when we'll upgrade the domain, what will happen, instead of this wordpress.com, my domain will be mydomain490.com। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी this is the subdomain of wordpress.com, because here we can see wordpress.com at the end as an extension। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अपग्रेड कर लेंगे तो क्या होगा कि ये wordpress.com की जगह पर 490.com आ जाएगा, मतलब कि वर्डप्रेस का सब डोमेन नहीं होके हम एक अपना इंडिविजुअल डोमेन परचेज कर लेंगे। इसके अलावा यदि मुझे होस्टिंग यहाँ से परचेज करनी है तो होस्टिंग परचेज करना भी बहुत इजी है। आप बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यहाँ से आप जाओगे, अब एक विजिबल है स्क्रीन? ओके, सो आप यहाँ से जाओगे एंड कोई भी प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, दीज आर दी होस्टिंग प्लान्स अवेलेबल। यहाँ से कोई भी होस्टिंग प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टर प्लान जो है इसको यदि हम अपग्रेड करते हैं तो अलग अलग प्राइजेस अवेलेबल हैं। स्टोरेज यहाँ पर अवेलेबल है 6 GB, 13 GB, 50 GB। कौन से प्लान पर कितने डोमेन आप पब्लिश होस्ट कर सकते हो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी प्लान अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? So this is how the installation and upgrade process of WordPress is very simple. Okay, and जब आप इंस्टॉल करते हो वर्डप्रेस को, so that is only one click installer। ठीक है, आपको बस वर्डप्रेस पे जाके इंस्टॉल का बटन होता है, इंस्टॉल के बटन को क्लिक करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, वो वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कुछ भी अलग से करने जैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वर्डप्रेस लैंग्वेज।
So there are more than 70 languages available on the WordPress platform, right? So that users can create their own blog or website by multi language. ठीक है, मतलब 70 languages support करता है WordPress, available है WordPress platform पर, right? तो आप कोई भी इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग्स के लिए या फिर अपने वेबसाइट्स के लिए. ओके, by using WordPress you have to select the user interface language option. You will get a number of languages. Okay, this option is helpful to the users to develop our business worldwide. मतलब कि यदि आपको वर्ल्ड में किसी डिफरेंट लोकेशंस पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है, या फिर आपकी टारगेटेड ऑडियंस अलग अलग लैंग्वेजेस की है, तो उनके लिए आप अलग अलग लैंग्वेज में अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो. ठीक है, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन वर्डप्रेस. नेक्स्ट फीचर ऑफ वर्डप्रेस इज यूजर मैनेजमेंट. ठीक है, सो WordPress makes management quick and easy. ठीक है, it has several roles to manage its website. For example, administrator manages the web pages, writers and editors manage the content, and users or subscribers create and manage their profiles. ठीक है, मतलब कि जो WordPress है वहां पर बहुत सारे तरीके हैं मैनेजमेंट के, यूजर मैनेजमेंट के. फॉर एग्जांपल यदि हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? ओ 1 सेकेंड, सॉरी. Okay, is it visible now? Is my screen visible now? Okay. So यूजर मैनेजमेंट की यदि हम बात करें, so there are different type of roles available on the WordPress. Like एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, who can manage the web pages. ठीक है, राइटर्स का आप राइटर्स या फिर ऑथर्स का एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ऑथर्स प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो. एडिटर्स आप बना सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में. ठीक है, उनको एक सेपरेट प्रोफाइल प्रोवाइड कर सकते हो, उनका सेपरेट लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, वो अपने ईमेल से आपके वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं. बट हर जो भी आप रोल उनको प्रोवाइड करते हो, उनका जो मतलब जो पार्ट वो एडिट कर सकते हैं वेबसाइट में, वो लिमिटेड होता है जो आप उन्हें अलॉट करते हो. लाइक यदि कोई राइटर है तो उसको सिर्फ राइटिंग पार्ट ही अवेलेबल होगा. ठीक है, वो और कोई पार्ट मैनेज नहीं कर सकता, राइट? वेबसाइट में और कुछ एडिट नहीं कर सकता, वेबसाइट की डिजाइनिंग के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, राइट? सो this is how you can easily manage the WordPress website with different roles available. ठीक है, next is simplicity of operations, right? So the important feature of WordPress is simplicity of its operations. The simplicity makes the process quick and efficient. In WordPress you can create a new web page and publish the content at any time. ठीक है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टाइम पर आप कोई भी नया पेज क्रिएट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो. It comes with an inbuilt dashboard, so you can add a new post, page, theme and much more. WordPress is browser based, so you can log into any internet connected device and manage your site easily. ठीक है, हम WordPress को लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब WordPress को लैपटॉप से भी वर्डप्रेस वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस से हम इसको लॉग इन कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वेरियस जो थीम्स अवेलेबल है और जो इनबिल्ट डैशबोर्ड है हमारे पास वर्डप्रेस का, उसमें हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है, पेजेस का ऑप्शन है, थीम्स का ऑप्शन है.
हम किसी भी टाइम पर किसी भी पोस्ट को, पेज को, थीम्स को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ थीम्स का कैसा ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल। 1 सेकेंड। when we were using the free version, हमारे पास limited themes थी, and pro version we can't use there, right? But in the paid version, यहाँ पर I have already purchased the domain and hosting, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपग्रेडेड फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, लाइक हम थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो थीम्स का सेक्शन अपीयरेंस में आता है। शिवम, आप थीम एडिटर के बारे में पूछ रहे थे गूगल सर्च कंसोल के लिए, तो ये थीम फाइल एडिटर का जो ऑप्शन है, ये सिर्फ जब आप डोमेन होस्टिंग परचेस कर लेते हो तभी ये आपके पास अवेलेबल होता है, फ्री वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अभी हम थीम्स पर चलते हैं। I have actually added an Astra theme on this website. So this particular theme comes with various starter templates. ठीक है, मैंने starter templates का plugin भी यहाँ पर install किया हुआ है already. So let's see what are the different types of themes available in this starter templates. Again, in this, Astra is actually a theme, and we have a plugin of it in the form of starter templates. So यहाँ पर भी कुछ free themes available है, free templates available है, कुछ premium templates available है, ठीक है, जिनको आप परचेज भी कर सकते हो, राइट? बट एस्ट्रा का जो थीम होता है दैट इज एसईओ फ्रेंडली, एंड अदर देन एस्ट्रा इफ वी टॉक अबाउट अदर, सो डीवी का जो थीम्स होता है, DIVI डीवी थीम्स, दैट इज आल्सो एसईओ फ्रेंडली, राइट? इसके अलावा और भी होते हैं, मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी वो, ठीक है। सो दीज आर द टेम्पलेट्स अवेलेबल इन एस्ट्रा, all these are free, means जहाँ पर प्रीमियम नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल दिस ई कॉमर्स वेबसाइट इजी इंस्टॉलेशन होता है, किसी भी थीम को आप क्लिक करके देख सकते हो कैसे दिख रही है, उसका प्रीव्यू जनरेट करके देख सकते हो, ठीक है। टेकिंग टाइम, taking time, but you can preview from here which type of website is this, and you can continue it from here. Okay, there is some loading issue, so ठीक है। जैसे ये सारी थीम्स अवेलेबल है, फ्री में है ये सारी थीम्स, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम एंड कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड, ठीक है। यू कैन स्टार्ट एडिटिंग फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है। जस्ट आपको कंटिन्यू करना है और आपका जो भी डेटा है वो न्यू पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड? Okay, so I think we have to wind up the session for now, ठीक है। किसी को यदि कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। स्टार्टर टेम्पलेट मीनिंग, एक्चुअली दिस फीचर कम्स विद द एस्ट्रा थीम ओनली, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट में यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल, जो कि सिर्फ एस्ट्रा थीम से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। सो we can use any of the starter template from there,
एंड मतलब उसमें कुछ अलग नहीं है, बस वो एक नाम दिया है, ये फीचर आता है एंड सिंपल है। जो भी थीम जैसे हम वहां पर इंस्टॉल कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी इंस्टॉल करना है। वी कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम एंड इंस्टॉल इट ऑन अवर वेबसाइट। ठीक है, कस्टमाइजेशन एंड एवरीथिंग इज सेम। ओके, हाँ एक और चीज थी, साइड बार कैसे बनाना है। सो साइड बार का ऑप्शन भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। फ्री वर्जन में आई थिंक श्वेता फ्री वर्जन ही यूज कर रहे हो? हम्म, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको फ्री वर्जन पर दिखाती हूँ। फ्री वर्जन में चेक करना पड़ेगा इस ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सो साइट नेविगेशन में चलते हैं हम, एडिट साइट। Is my screen visible to you? थोड़ा सा लोड होने को टाइम लग रहा है इसको। लेट मी चेक। मैं आपको पोस्ट में एक बार यहीं पर बता देती हूँ। आई थिंक ये हाँ इधर भी अवेलेबल है। लाइक ये स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में अच्छा ये फॉन्ट स्टाइल है, 1 सेकेंड। ये टेम्पलेट्स में जब हम जाएंगे सो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है किस टाइप का टेम्पलेट हमें चाहिए। यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं फ्री। अच्छा फ्री वाले में साइड बार का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। तो हेडर्स, testimonials, pages, intro, gallery, feature, blog post, about, events, contact। फ्री वर्जन में श्वेता साइड बार्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको पेड वर्जन में एक बार शो कर देती हूँ कि कैसे आपको दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पोस्ट में भी गए, पोस्ट में भी हम साइड बार ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मटर पनीर रेसिपी जो वाला पोस्ट था आप लोगों का, वही ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट जो टेम्पलेट आ रहा है पोस्ट एट्रीब्यूट्स में, हियर वी हैव टू सेलेक्ट हियर विच टाइप ऑफ टेम्पलेट वी वांट। ठीक है, एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विड्थ, पोस्ट ग्रिड कैनवास, पोस्ट ग्रिड फुल थीम, फुल विड्थ और थीम, या फिर यहाँ पर ये साइड बार का ऑप्शन भी अवेलेबल है।
तो कहाँ पर चाहिए आपको, जैसे आपने जो श्वेता एग्जाम्पल मुझे दिया है वहां पर लेफ्ट में साइड बार है, ठीक है, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार और नो साइड बार, तो यहाँ पर ये दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट साइड बार यहाँ पर यदि सिलेक्ट किया और मैं प्रीव्यू करती हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट में साइड बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइड बार में भी मुझे क्या चाहिए वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स वाइंड अप द सेशन। यदि और भी कोई इश्यूज है, कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन। वन सेकेंड। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप नेक्स्ट क्लास तक आप सभी की वेबसाइट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।